عارف صاحب کو دعوت دینے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ علم کا ایک خزانہ ہے. آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کر لیا, سنا کہ یہ واقعی طور پہ علم کا ایک خزانہ ہے. اللہ آپ کو صحت دے, آپ تندرستی دے, آپ کے علم میں اضافہ کرے. تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کی اس تقریب کے ایک ہی آفیسر ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جو کہ اگلے چند ماہ میں بھی ریٹائر ہونے والے ہیں. اس ایسوسیشن کے روئے رواں رہ چکے, اس کی آن بان شان جاوید اقبال کھانڈے صاحب کو دعوت دیتا ہوں اپنے ذریعے خیالات سے ہمیں جاوید صاحب جاج ہاں مجھے عارف صاحب تقریر کر پتہ باقی تقریر یہ گوڑ جایا چلو ریت روایت بہرحال حکم اتن کرون اور ام بعد کم گنجائش. محترم الطاف صاحب, سجاد صاحب اور ان کے بشیر صاحب کے فرزندان جو یہاں اور ان کے ساتھ کچھ مہمان آئے ہیں, صدر نائب صدر پٹوار اسٹیشن نثار صاحب, ضلع صدر پٹوار اسٹیشن کشتواڑ عارف صاحب, یہاں دور دور سے صدور تحصیلات, بنیادی ممبران, گردور صاحبان اور میرے عزیز ساتھی. وہ سنا میں پڑھا کہ وہ پڑھ رہے علی بھائی میرا عزیز ساتھی ہے, میرے بعد 2 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہے تو یہ میرا عزیز ہی ہے. ان کا احترام کرتا ہوں کیونکہ ان سے ہم نے کام سیکھا ہے. اور آج کے اس محفل کے شان میرے بڑے بھائی, میرے استاد بھی رہ چکے ہیں, محترم بشیر صاحب. ان سے میرا 1990 سے لے کر ابھی تک کا ساتھ رہا ہے. ہم اکٹھے رہے ہیں. 1990 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی جب میں ہیرا نگر سے ٹرانسفر ہو کر سیدھا مڑوا پہنچا. پہلے تو مجھے ڈوڈا تعیناتی ہوئی تو ڈوڈا میں ہمارے ایک نبی بخش صاحب ایس کیو ہوا کرتے تھے, لیکن وہ آج کے ایس کیو نہیں. وہ آرڈر کرتا تھا کہ اسی سے کہتا تھا اس پر دستخط کر. تو آج صرف محدود ہے ڈاک پر ہمارے ایس کیو او کیو اس وقت وہی آرڈر کرتے تھے اور اردو میں آرڈر ہوا کرتا تھا. ہمارے پاس آرڈر آج بھی موجود ہے. تو نبی بخش نے مجھے کہا بیٹا یہاں ایک ہی پوسٹ خالی ہے رنئی میں. وہاں ہمارے ولی محمد صاحب اینگر جو پلواڑ سے تھے تو وہ اکثر مغل وہاں اپنے ڈٹ بٹ میں کرتے تھے. ان کی پروموشن ہو چکی تھی. وہ ان کو گندو مرداور لگایا گیا تھا تو انہوں نے کہا بھائی آپ ایک ہی جگہ جا سکتے ہیں, وہ رنئی کی پوسٹ خالی ہے, یا ہم کوشش کریں گے آپ کو دھیرنا میں بھیج دیں گے. آپ مجھے آپ بتاؤ دھیرنا پسند کرو گے یا رنئی. میں نے سوچا یار پہلی بار جانا ہے رنئی تو دھیرنا کیوں جاؤں گا. میں نے سوچا دھیرنا کوئی دھار ہوگی تو بہتر ہے. میں نے کہا مجھے رنئی لگا دو. اور آپ ساتھ جاتے اور جنہوں نے رنئی میں ڈیوٹی کی ہوگی تو میں کسی کو ساتھ لے کے تب پتی محل تک گاڑی جاتی تھی. تو اس دن راستہ بھی بند تھا, مجھے پلماٹ یہاں بڑاکپور سے ہی پیدل چلنا پڑا. تو میں نے اپنے ساتھ ایک بندہ اٹھایا ساتھ. یہاں الطاف صاحب گواہ ہیں کہ آج آپ کو فرسٹ کلاس وہاں ٹرانسپورٹ کا سلسلہ بھی ہے. تو نہیں معلوم اگر مڑوا جانا ہو تو آپ کشمیر سے جا سکتے ہو, کھانا پینا سب کچھ ہے. تو ہمارے پیچھے بغیرے ہوتے تھے, آنچار ہوتا تھا. تو راستے میں جب ہمیں کہیں رات لگ جاتی تھی تو ہم کھچر والوں کے ساتھ سوتے تھے کیونکہ بستر ہمارے پاس ہوتا نہیں تھا. ایک آدھا کوئی شال وغیرہ ہوتا تھا. تو رات کو جب ہم کھچر والوں کے ساتھ کہیں گفا میں سوتے تھے, خدا کی قسم ہے مجھے کہ کھچریں رات کو پیشاب کرتی تھی, وہ ہمارے سروں پہ پڑتا تھا. ایسا ہم نے ماحول دیکھا ہے. اور کسی دن روٹی کھاتے تھے کہ الطاف صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ وہاں کے آفیسر تھے, ہم ان دنوں چھوٹے ہی تھے. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم تیسرے دن چوتھے دن رنئی پہنچتے تھے. تو جب میرا پہلا وہاں جس دن میں نے جائننگ ڈالی تو جب میں وہاں پہنچا رنئی میں تو وہاں ہمارے ایک عبدالسبحان بٹ صاحب
फॉरेस्ट गार्ड हुआ करते थे। तो मैंने वहीं एक मकान अच्छा देखा तो मैं उनके घर में गया। पहले तो मैं पटवारी साहब से मिला, सोच मख्तुलोन, तो मैं गया तो मैंने कहा पटवारी साहब कहाँ हैं? वो मुझे लगा ही नहीं पटवारी, उसने टोपी रखी थी वही मड़वा की, वही कोट शोट वैसे ही बैठा था। तो मैंने कहा पटवारी साहब कहाँ हैं? कहता मैं ही हूँ पटवारी। कहता बाबा सुकुश। मैंने कहा मैं पटवारी हूँ, आप गिरदावर बन गए हो। कहता वो कब? उसको पता ही नहीं था कि मैं गिरदावर बन गया। मैंने कहा हो गए 1-2 महीने। कहता बाबा फिर मुझे पता ही नहीं है, कोई डाक नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कुछ नहीं। तो कहता आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा जी मुझे ज्वाइनिंग करने। कहता रिगार्ड्स आई मीन डापलिंग कश्तवाड़ पिछली और जमा बंदी थी गिरदावरी आद मोला में छे नामन वेरी गिरदावरी करने मैं तो बस कार गिरदावरी तो को रजिस्ट्रेशन आई लैक मुराद सुबह सुबहान बाटने मुझे हम वक्त वो सुबहान बाटने सुबह वक्त में ध्यान तो हम क्या गिरदावरी बाहर नहीं छोटी गिरदावरी। तो उसने वो फिर एक लिखी, अल्लाह का एहसान था कि वहां नाउसाल में कोई वरासत इंतकाल भी नहीं हुआ था। तो उसने फिर 3 जल्दी लिखी, फिर उनकी गिरदावरियां की, तो फिर उसने मुझे चार्ज दिया। तो वो इधर आया, तो अब मेरा वहां अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। तो उस वक्त जो वहां बशीर साहब थे, गुलाम नबी साहब थे, अली भाई थे, स्वरूप जी और क्या कहते हैं शक्ति जी, इन्होंने ही ये दक्षिण और मड़वा का एरिया संभाला था। किश्तवाड़ का वहां ज्यादा आना जाना नहीं था। अलबत्ता कादरीना में अपने क्या कहते हैं ये अजीज मोहम्मद साहब थे, तो बड़ा मुश्किल होता था। यहाँ गवाह है क्योंकि ये मुझसे बड़े हैं, मेरी बात आपको मजाक लगेगी लेकिन मुझसे बड़े हैं अल्ताफ साहब। रिनई जो एरिया है वहां सालन का चावल बनता था, तासे श्रावण डूनी थी। मेरे ख्याल 60-65% वहाँ टीबी के पेशेंट थे, 10% कैंसर के पेशेंट। और मैं आपको ये बताऊंगा मुझे खुद इन्फेक्शन हुआ था, मैं खुद वहाँ टीबी का शिकार हुआ था। इतनी वहाँ गंदगी थी उस वक्त, और आज मैं सुन रहा हूँ कि निर्णय कैसा है। लेकिन यही मेरा भाई है और गुलाम नबी साहब जो हमारी इस वक्त जहाँ मौजूद नहीं है, ये हमें अपने साथ चलाते थे और काम भी सिखाते थे। और मैं हीरानगर से आया था, पटवारी था मैं, हीरानगर से था, लेकिन इनसे ही हमने काम सीखा है और इनके साथ हम उठते बैठते थे। और मैं ये आपको आज बताना चाहूँ कि जितनी देर में मड़वा में रहा, जितने भी मड़वा में मुलाजिम थे, खास करके रेडियो से, वो इनके घर में ठहरते थे, क्योंकि एक सखी घर से ताल्लुक रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बशीर साहब वहाँ थे या दक्षिण में थे, मड़वा में थे, जम्मू में थे, लेकिन इसने एक ही बार बताया था कि जब भी आओगे इस घर में रुको। और हमने कभी भी इनके वालिदैन के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि यार और भी कहीं घर में है, उनके घर में जाओ, वो बात नहीं है, बल्कि वो हमें पकड़ कर ले जाते थे, कहीं नहीं जाने हमारे घर में भी। और बराबर हम जितनी देर वहां रहे थे इनके घर में बैठा करते थे। बशीर साहब से ही मैंने हुक्म लिखने सीखे। हालांकि मेरा उस्ताद अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, त्राक साहब थे, अब्दुल रशीद त्राक साहब। लेकिन उस एरिया में या उसके बाद भी जब भी मुझे कहीं कोई अड़चन आई तो मैं बशीर साहब से ही सीखता रहा। इनसे मैंने इंतकाल लिखने के हुक्म सीखे, या दूसरा कोई रिपोर्टिंग करनी होगी। कुछ लोग पता नहीं आप दिल से कहते हैं कि मुझे खुश करने के लिए कहते हैं कि भाई आपकी रिपोर्टिंग अच्छी होती है, लेकिन मैंने बशीर साहब से ही रिपोर्टों का सिलसिला सीखा है। अपने काम में बड़े माहिर थे, बड़ी शराफत से रहते हैं, गुस्सा भी इनको आता है। जैसे अभी इन्होंने कहा गरीब गुंडा, हम तो सीधा करते हैं ना गुस्सा, ताड़ो ताड़, लेकिन इनका गुस्सा ऐसे नहीं होता। लेकिन जब गुस्सा आता है, लेकिन वो बड़ा खतरनाक गुस्सा होता है, उसमें फिर कोई इलाज ही नहीं। हमारे में डसे में इलाज है, इसके डसे में इलाज नहीं है। ये फिर कलम से गुस्सा करते हैं, हम मुंह से करके कलम से फिर गुस्सा करते थे। तो बहरहाल बशीर साहब जो है इन्होंने बड़ी अच्छी सर्विस की है। मतलब हर एक गरीब का काम बड़ी रहमदिली से ये काम करते थे कि यार ये बेचारी बेवा है, जो इनके इख्तियार में था वो भी किया, जो इनके इख्तियार में नहीं था वो भी किया। लेकिन सच मेरे यहाँ आरिफ साहब ने कहा कि लोगों को फायदा देने के लिए, किसी गरीब को फायदा में, एक ये सिर्फ पटवारी नहीं रहे, सिर्फ गिरदावर नहीं, सिर्फ नायब तहसीलदार नहीं, इनको सरकारी तो एक बार तहसीलदार का आर्डर भी हुआ था, उसमें गुलाम नबी साहब को भी आर्डर हुआ था कि तहसीलदार
शक्ति जी को भी और अपने स्वरूप जी को भी। एसडीएम का काम भी लेकिन इसने एसडीएम का काम भी किया है, इसने टीएसओ का काम भी किया है, इसने स्कूलों में 7 तक प्रिंसिपलों को भी पकड़ा है। ऐसी बात नहीं है, उतनी शराफत इसमें नहीं थी। ये हर ऑफिस में जाते थे, छापा भी मारते थे और कानूनी कार्रवाई भी करते थे। लेकिन उस एरिया में, मड़वा में, जब मिलिटेंसी का दौर था, डीसी नहीं जाता था, एसपी नहीं जाता था, फौज नहीं जाती थी, उस वक्त भी उन घरों में जाते थे जहां खतरे से कोई एक सेकंड खाली नहीं था। लेकिन लोग इनके काम से खुश थे, आज भी इनके काम से खुश हैं। ये वहाँ बरेसा में रहे, वो हमारी रिश्तेदारी है, वहाँ से हमारे कुछ वो हुसैन खान वगैरह जो नायब सदर रिटायर हो गए, वो हमें कह रहे थे यार इसका बड़ा अच्छा यहाँ काम रहा। बाकी अपने रिश्तेदारों ने मुझे कहा इनका अच्छा काम रहा। लेकिन बदकिस्मती से कि आखिरी वक्त जो है इनका, वो रिटायरमेंट का वक्त जब आया, इनको थाना मंडी में ट्रांसफर किया गया है। तो चलो ये इनको वहाँ कुछ दाना पानी था। लेकिन मैं सलूट मारता हूँ जम्मू कश्मीर पटवारा से डिस्ट्रिक्ट यूनिट किश्तवाड़ को, उन्होंने हमारी इस शख्सियत को, अगर ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रिटायर है, आपने इसको याद किया। ये मैं सलूट करता हूँ यहाँ की एसोसिएशन को और यहाँ के मुंतजमीन को और यहाँ के जोमा को कि ये इनकी काउंसिल से ऐसा हुआ। खास करके अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब का, जावेद साहब का, जिन्होंने इसमें ज़्यादा पेन ली तो साहब ने, लेकिन चलो कुछ साथी तो आए, खाना खाए चले गए, वो तो चलो अपने ही लिए आए, इनके लिए नहीं आए। ये अच्छा नहीं लगता है। जब आए किसी मेहमान के साथ, फिर उसको तब तक वहीं साथ रहना है जब तक उसको कहीं पहुंचाएंगे। तो बहरहाल आपने इनको दावत दी, इन्होंने कबूल की। मैं शुक्रगुजार हूँ पटवार एसोसिएशन का कि उन्होंने हमारे इस भाई को याद रखा, क्योंकि अब मेरे ख्याल आखिरी विकेट जो है वो बची है। अली भाई तो मेरे हसीस हैं। ये विकेट भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने सेहत दी, उम्र दी, 30 जून को ये आखिरी विकेट भी गिर जाएगी। और हमारा जो ये मैच स्टार्ट हुआ था 1985 में, ये इख्तिताम पजीर होने वाला है 30 जून को। अब हमारा कोई साथी रेडियो में नहीं बचा, क्योंकि अली भाई कहता है मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। तो मैंने कहा चलो अजीज़ अली मोहम्मद साहब, जब मैं 8वीं में कहा आप तो पटवारी थे, चलो आप वैसे छोटे हो, तो चलो अल्लाह इनको सेहत दे अली मोहम्मद साहब को। तो चलो इनका, इन्होंने भी अभी जो कह रहे थे कि इन्होंने अफसरी नहीं की, ये भी नायब तहसीलदार रहे, ऐसी बात नहीं अगर डीसी के आर्डर पर, लेकिन इसने भी नायब तहसीलदारी की। तो बहरहाल अगर मुझसे किसी किस्म की सर पर गलती हुई होगी कभी, क्योंकि बशीर साहब के साथ मेरा बहुत पुराना मजाक है, हंसना खेलना इनके साथ, और इनके घर में मेरा आना जाना है, इनका मेरे घर में आना जाना है। हम बहुत एक दूसरे से मिले जुले रहते थे। और जब भी चाहे थाना मंडी में रहे, मड़वा में रहे, डोडा रहे, कश्तवाड़ रहे, इनके साथ टेलीफोनिकली हम मशवरा करते रहते थे। और आप हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत अता करे। और मेरी दुआ रहेगी इस मजलिस में कि अल्लाह करे कि अगले साल ये भी हज करके आए, क्योंकि जब मैं पिछले साल हज पे चला गया तो ये उन दिनों शायद वहाँ बरेसा में थे, ये मुझे मिल नहीं पाए। बाकी साथी तो यहाँ मिल गए मिल, लेकिन उन्होंने एक खत मुझे लिखा था, तब मैं श्रीनगर हवाई अड्डे पर था, तो इनका खत बज़रिए व्हाट्सएप मिला, जो इस वक्त मेरे व्हाट्सएप में मौजूद है। वो खत मेरे लिए न सिर्फ इनकी तरफ से एक दुआ थी या कुछ गुजारिशात इसने रोज़े रसूल के लिए लिखी थी कि वो हमारे लिए दुआएं करना है, लेकिन उसमें मेरे लिए भी कुछ खास हिदायत थी, इसलिए उस खत को मैंने आज भी महफूज रखा है। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे याद किया, और आरिफ साहब का भी, और आपके पटवार एसोसिएशन का पूरी का, कि मुझे स्पेशली आरिफ साहब ने भी दावत दी थी और इन्होंने भी दावत दी थी। तो बहरहाल अगर मुझसे किसी किस्म की गलती, बहरहाल मेरा मजाक रहता है, तो अगर कहीं मैं आउट ऑफ सिलेबस गया हूँ तो उसके लिए माजरत का हूँ। काशिर मजवान मशन मशन गई मशिद में सही, मगर मशन चोन क्या मशरूम में चोन नहीं महाल। आप मेरे दिल से नहीं निकल सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलने आया करूँगा, और आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप भी मुझसे मिलते रहेंगे, क्योंकि मैंने 1990 में आपके साथ ये सफ़र शुरू किया था, और आज 2024 में
आप वो अल्लाह ने बड़े इज़्ज़त के साथ इस मकाम पर पहुंचाया। तो मेरे लिए भी दुआ करें कि जो बाकी 63-64 दिन बचे हैं वो मेरे लिए अच्छे साबित हों और मैं भी आपकी तरह इज्जत से ही अपने घर चला जाऊंगा। तो आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया, और बशीर साहब को जो आपने यहाँ इस वक्त दावत दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप इसको याद रखेंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह का है कि आपको याद है। और ये सबसे बड़ी जमात है जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन की कि इसके मुकाबले में दूसरी कोई एसोसिएशन नहीं है। आपने हमेशा जाने वाले की इज्जत दी है, और आने वाले साथियों से भी गुजारिश है जो नए साथी हैं, जो सिर्फ यहाँ किसी 2 मिनट के लिए खाने के लिए आते हैं या ऐसे ही मजा लेने के लिए, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप भी जैसे हमारे साथी हमें इज्जत से यहाँ से इस वक्त रुखसत कर रहे हैं, तो कल जब आपकी बारी आए वो भी आपको इज्जत से ऐसे ही रुखसत करें। तो आखिरी बार में फिर बशीर साहब से यही कहूँगा कि आप जाएंगे यहाँ से, है याद बाकी आपकी, हम न बोलेंगे न बोलेगा ज़माना।